We tend to forget. We don't keep it in memory. That's why we are in a habit to repeat it again and again. In case we would have remembered Jallianwala Bagh, many other problems that happened in history would not have happened. The only thing, we have not learned lesson from what bad happened to us. And what was the reason for this to happen? Because we were not united. So it's my humble request to all the teachers. This particular episode should have been displayed in assembly, because that was one thing which every child needs to know, so that they should not repeat those mistakes in present and future to come. How brutally they all were shot dead. If you visit Jallianwala Bagh someday, there is history, they depict history in a very horrible manner. If you go and see it yourself, you will have an idea how horrible event it was. And how revenge of this event was taken by somebody, we should not forget to mention. Who took revenge of Jallianwala Bagh? Sardar? No, not Bhagat Singh. Sardar Udham Singh. Can we have a huge round of applause, everyone? So not only what happened, but somebody who took initiative to take revenge of it, so that same kind of unfortunate event should not take place, keeping in view that I belong to this motherland and I am the one who is responsible to take revenge. It is a huge and prime responsibility of each and every citizen, which was fulfilled by Sardar Udham Singh. And where he took this revenge and how he took, anybody knows about it? Anyone out of you? There are many who have read history and are still students of history. Anyone who knows about it? How Sardar Udham Singh took revenge and where he has taken it? Yes? It happened in London, and he shot the people responsible for it in their country, not in India. And it requires a lot of courage and lot of dedication and lot of love and responsibility towards our motherland. So we should not forget the real heroes of our country. Rest, those who are working in Bollywood, they are not heroes, they are actors. So we should know the difference between the two. They are just role players. They are actors. We call them hero. They have not done anything like, they should be called for hero. So these are the real heroes of Indian motherland. So be in a habit of calling them actors and be in a habit of calling these people as heroes who have sacrificed their lives so that you can live your present and future gracefully and without any feeling of slavery. So they are the responsible ones. So can I expect this now onwards, at least from Ronakhites, that they will know the difference between hero and actor? Yes? Yes. So what are these Bollywood role players called? Actors. And you know who are the real heroes? Yes. Somebody who is saving your life, somebody who is sacrificing their own family and life for your good thing. So this one habit we have to develop, and we have to talk to each and everyone around you. That would be the real, gratitude that we will show it to sacrifices of all this. Coming to Hanuman Jayanti. So according to you, from where Hanuman ji used to get his strength? One very simple question. सबके घर में हनुमान चालीसा भी होता है, हम बहुत टाइम से और आज की डेट में तो मुझे लगता है हनुमान जी के भक्त सबसे ज्यादा है. जिनको क्या बोलते हैं, बुरी चीज़ों से डर लगता है, वो भी हनुमान जी के पास जाते हैं. जिनको पावर दिखानी होती है वो भी हनुमान जी के पास जाते हैं. तो बल बुद्धि विद्या तीनों के देवता हनुमान जी. तो कहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है हनुमान जी को? एनीवन आउट ऑफ यू? लेट मी सी कि अपने भगवान को कितना जानते हैं आप लोग, या बस क्योंकि बचपन में हमने रट लिया हनुमान चालीसा और हम शुरू हो जाते हैं.
यस, श्री राम। लेकिन बचपन से तो श्री राम नहीं थे। पेरेंट्स, कैन यू बी लिटिल स्पेसिफिक? कौन से पेरेंट? कुछ नाम हो उनका? वेरी नाइस, कैन वी हैव a huge round of applause? केसरी जी एंड अंजना मैम। तो हमारे हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अब इसको ध्यान से सब सुनेंगे क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछने हैं। संकट ते हनुमान छुड़ा, तो इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। वो स्टोरी आज हम सुनेंगे और कुछ दिन बाद आपने उस स्टोरी पर वीडियो बनाना है। किस दिन बनाना है? आई विल ब्रीफ योर टीचर्स। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, अदरवाइज वो बहुत लंबी स्टोरी है। यू ऑल मस्ट नो कि इस स्टोरी को जानना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सुमेरु पर्वत, कहां था सुमेरु पर्वत? नाम सुना है हमने रामायण में सुमेरु पर्वत का? कौन सा पर्वत था? चलो, सुमेरु पर्वत वो पर्वत था जहां पर विभीषण रहा करते थे, सॉरी सुग्रीव रहा करते थे, जहां पर श्री राम जी बैठकर पूरी प्लानिंग किया करते थे युद्ध को लड़ने की। तो बेसिकली वहां पर रहने का स्थान सुग्रीव को मिला था क्योंकि उसके ब्रदर बाली को ये श्राप था कि वो उस पर्वत पर कभी भी पैर रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। और बाली से डरकर आपको पता है कि सुग्रीव भाग रहे थे और वहीं पर ये सब मीटिंग्स बैठक सब वहीं होती थी। तो एक बार एक राजा, श्री राम जी के साम्राज्य का ही एक राजा, वहां एक बैठक अटेंड करने जा रहे थे। तो उन्होंने जब जाते समय नारद मुनि उनको रास्ते में मिले। नारद मुनि कौन है? मीडिया, आज का मीडिया है ना, इधर की बात उधर ऐसे कैरी ऑन करना, आपस में लड़वा देना। सो दैट वर्क यूज्ड टू बी डन बाय नारद मुनि जी। तो नारद मुनि जी को उन्होंने नमस्कार किया कि मैं सुमेरु पर्वत पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ। फिर वापस बुलाया, बोला राजा इधर आओ, एक काम करना, जा तो रहे हो वहां सबको नमस्ते करना, विश्वामित्र जी को नमस्ते मत करना। विश्वामित्र का नाम सबने सुना होगा, तो विश्वामित्र जी को नमस्ते मत करना। अभी राजा बड़े हैरान हुए कि नारद मुनि जी मैं सबको नमस्ते करूं, पर ये तो मेरे संस्कार नहीं है कि मैं विश्वामित्र जी को नमस्ते नहीं करूं। क्यों नहीं करूं? तो उन्होंने कहा इसलिए मत करना, विश्वामित्र जी भी पहले राजा हुआ करते थे, बाद में वो सन्यासी हो गए, तो राजा राजा को नमस्ते क्यों करे? तो मत करना। अब राजा को लगा भी नारद मुनि इतने बड़े मुनि हैं, नमस्ते करने से मना कर रहे हैं। गए वहां पर, सबको नमस्ते किया, विश्वामित्र जी को नमस्ते नहीं किया। और विश्वामित्र जी कौन थे? राम जी के गुरु। अब राम जी के गुरु को नमस्ते नहीं किया तो उनको बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो चुप बैठे रहे, सभा खत्म हो गई। विश्वामित्र जी गुस्से में दंदनाते हुए राम जी के दरबार वापस आए। उन्होंने कहा कि राम, मुझे तुमसे आज कुछ मांगना है। तो श्री राम ने बोला बताइए गुरुवर क्या मांगना है? नहीं, तुम मुझे वचन दो, जो मैं कहूंगा वो तुम पालन करोगे। तो श्री राम ने कहा गुरु की आज्ञा है, मैं वचन देता हूं। तो कहा कि इस राजा को तुम्हें कल मौत के घाट उतारना है, यू हैव टू किल दैट किंग। अब श्री राम जी ने पूछा कि उसका अपराध क्या है? तो उन्होंने कहा उसने तुम्हारे गुरु का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, तो तुम्हें उसको कल मारना पड़ेगा। अब श्री राम जी रहे वचन के पक्के, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, अनाउंस करा दिया कि कल हम राजा को युद्ध करके मौत के घाट उतारते। अभी राजा परेशान, जिसको श्री राम जी ने मारने की वचन दे दिया हो, उसको तो कौन ही बचा सकता है। तो वो दौड़े दौड़े गए नारद मुनि के पास कि आपने कहाँ फंसा दिया भगवान, आपने कहा था कि नमस्कार मत करना, मैंने नहीं किया, और अब श्री राम जी मुझे मारने आ रहे हैं। तो नारद मुनि ने कहा ये थोड़ी ना है कि मीडिया में कोई पब्लिसिटी हो रही है या कोई तुम्हें भड़का रहा है तो तुम भड़क जाओ, तुम मत भड़कते। दिस इज हाउ वी हैव टू यूज आवर माइंड। जब हमारा कोई ब्रेन वॉश करता है या हमें कुछ
कहता है उसको डबल चेक कर लेना चाहिए एंड वी शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। बोले चलो मान लिया मेरा दिमाग नहीं था, लेकिन अब तो मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे निकालिए। तो नारद मुनि ने कहा जिसको राम जी ने वचन दे दिया हो कि उसके प्राण लिए जाएंगे, तो तुम्हें अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मैं आपको तुम्हें उपाय बता सकता हूँ। तो बोलिए बताइए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अंजन पर्वत है, अंजना माँ का घर है वहाँ, हनुमान जी की माता, वहाँ चले जाओ और उनसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगो। अंजना माता चाहेंगी तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो भागते हुए गया अंजना माता के पास, बोला माँ मेरी रक्षा करिए। तो अंजना ने बोला क्या हुआ? कहता है कि मुझे किसी ने मारने की क्या कसम खाई है, नाम नहीं बताया किसने खाई, तो अगर आपकी कृपा मेरे पे होगी तो मेरे प्राण बच सकते हैं। तो अंजना माँ ने कहा कोई नहीं, तुम मेरी शरण में आए हो, तुम अंदर कुटिया में बैठो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे प्राण कोई नहीं ले पाएगा, ये मेरा वचन है तुमसे। तब तक अंजना माँ को पता नहीं था कि कसम किसने खाई है, इसलिए प्रॉमिस करने से पहले पूरी बात सुन लिया करो। बी ए गुड लिसनर, अच्छे से सुनो समझो तब प्रॉमिस करो। बिना डिटेल में जाए जब हम प्रॉमिस करते हैं तो हम प्रॉब्लम में आते हैं। अभी राजा तो बैठ गया अंदर कुटिया में, हनुमान जी आए शाम को मिलने, तो माता ने कहा कि आज मुझे तुमसे कुछ मांगना है। उसको बाहर बुलाया, उसको बोला कि हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ? अब उसने पूरी बात बताई जब उसको वचन मिल चुका। तो हनुमान जी ने कहा कि तुमने माता को क्यों नहीं बताया कि राम जी तुम्हें मारने की कसम खाई है? बोले अगर मैं बता देता तो माता वचन नहीं देती, और मेरे लिए प्राण तो सबसे प्रिय होते ही है। हनुमान जी बोले कि ये तो तुमने धर्म संकट में डाल दिया, पर चलो, क्योंकि अंजना माँ ने वचन दिया है, क्योंकि अंजना माँ ने कमिटमेंट की है, बीइंग हिज सन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपने भगवान के अगेंस्ट भी क्यों ना जाना पड़े, पर मैं वचन पूरा करूंगा। ये है तीसरी लर्निंग। व्हाट? क्या सीखा इससे हमने? कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, मदर हो फादर हो, वो भगवान से भी ऊपर है। एंड इफ यू हर्ट देम, इफ यू डोंट लिसन टू देम, ये सबसे बड़ा अपराध है दुनिया में। तो कभी भी माँ बाप को कभी भी इग्नोर मत करिए, कभी डिसरिस्पेक्ट मत करिए। दिस इज थर्ड लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी, कि जिनको दुनिया में सृष्टि में सबसे ऊपर मानते हैं हनुमान जी, उन्होंने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि अगर मेरी मदर ने कहा है तो मैं अपने भगवान के भी अगेंस्ट चला जाऊंगा, लेकिन मदर का जो वचन है उसको मैं झूठा साबित नहीं होने दूंगा। अभी आ गई फैसले की घड़ी। श्री राम जी निकले नेक्स्ट डे मॉर्निंग कि चलो भाई युद्ध की तैयारी करो, राजा को युद्ध करके और उसको प्राण हरने हैं उसके। हनुमान जी भी खड़े हुए, लेकिन वो राम जी के साथ चलने के बजाय उल्टी तरफ चले। तो राम जी ने कहा हनुमान तुम कहाँ जा रहे हो? बोले सर मुझे एक बड़ा जरूरी काम है भगवान, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे से ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? तो उन्होंने कहा नहीं है कोई जिसकी मुझे रक्षा करनी है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी से राम जी ने पूछा ऐसा कौन है जिसकी रक्षा करना तुम्हें अपने भगवान के साथ युद्ध में जाने से भी ज्यादा प्रिय है? तो हनुमान जी ने कहा भगवान वो जिसके प्राण आप लेने जा रहे हो उसको छोड़ दीजिए प्लीज। तो राम जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु की चरणों की कसम खाई है कि मैं उसके प्राण ले लूंगा, तुम भी बीच में नहीं आओ। हनुमान जी ने कहा कि मैंने आपके चरणों की कसम खाई है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो अब आपको देखना है कि आपको अपने गुरु जी के चरणों की कसम रखनी है या अपने भक्त ने जिसने आपके चरणों की कसम खाई है उसका आपने सम्मान रखना है। ये आप देखिए, मैं तो आपके चरणों की कसम को पूरा करने जा रहा हूं। तो राम जी ने कहा ठीक है फिर आज देख लेते हैं तुम जीतते हो या हम जीतते हैं। तो युद्ध के लिए तैयारी हुई। हनुमान जी जानते थे राम जी के आगे तो कौन टिका है। तो हनुमान जी ने कहा राजा को कि चलो तुम मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले वो राम जी युद्ध लड़ने आ रहे हैं, वहां जाना है।
उन्होंने कहा आपने तो कहा था कि आप मेरी रक्षा कर लोगे। बोले रक्षा करने के लिए लेके जा रहा हूँ, तुमने तो मेरे प्राण संकट में डाल दिए हैं, पर अब माँ को वचन दिया है तो क्या कर सकते हैं। तो जंगल में गए और बोला अभी यहाँ सुख आसन में बैठो, सिर्फ राम राम का जाप करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना। बोले ऐसे थोड़ी ना, राम राम का जाप करने से क्या होगा। हनुमान जी ने कहा मैं कह रहा हूँ तो तुम करो तो सही। तो वो बैठे, लेकिन बेचारे की आंखें बंद ना हो, डर लग रहा था कि अभी कोई तीर आएगा और उसको मार देगा। लेकिन हनुमान जी ने समझाया कि जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, भरोसा रखो उस पर। जब उन्होंने राम 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 का नाम जपना शुरू किया तो सामने से जितने भी तीर आए, लक्ष्मण जी चला रहे थे या राम जी चला रहे थे, वो तीर 2, 10, 12 सेंटीमीटर दूर ही जाकर रुक जाते थे और अपने आप टूट जाते। तो ये बड़ी हैरानी हुई राजा को देखकर कि तीर आ तो रहे हैं लेकिन मुझे लग नहीं रहे। तो उसने पूछा हनुमान जी से कि ये क्या व्यवस्था है कि मैं लड़ नहीं रहा हूं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो इस तीर को मेरी तरफ आने से रोक रही है। तो हनुमान जी ने कहा कि दुनिया में राम से बड़ा राम का नाम, कि जो राम का नाम ले लेते हैं ना, वो राम जी से भी बड़ा है उनका नाम। तो जब तुम ये राम का नाम ले रहे हो तो तुम्हारी तरफ ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो गया है कि कोई भी अगर वो तीर चला रहा है तो उस ऑरा को वो भेद कर तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी हार रहे हैं। अब लक्ष्मण ठहरे गुस्से वाले इंसान, हर जगह भिड़ जाते हैं जाकर कि मेरे भाई की रिस्पेक्ट के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अगेन वन मोर लर्निंग कि आपके जो बड़े भाई हैं वो हर तरह से रिस्पेक्टेबल है, तो उन्हें कभी भी एब्यूज मत करिए, उनको भी कभी डिसरिस्पेक्ट मत करिए। तो लक्ष्मण जी ने साइड से जाकर एक तीर मारा और वो तीर राजा को ना लग के हनुमान जी के साइड पर लग गया। तो जब वो तीर हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी को तो कुछ नहीं हुआ, श्री राम जी गिर पड़े। अब ये सब देख के हैरान कि तीर तो वहां लगा, गिर श्री राम जी गए, ये क्या हुआ। तो जैसे श्री राम जी मूर्छित हुए, हनुमान जी भागकर रोते हुए उनके पास आए, उनके चरणों को पकड़ के रोने लगे कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करता। तो श्री राम जी जो मूर्छित अवस्था में थे उन्होंने हाथ रख दिया हनुमान जी के सिर पर। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या, तो बुद्धि वो बहुत है हनुमान जी के अंदर। उन्होंने क्या किया, अपने आप को माइनस करते हुए हटा के राजा को आगे करके और वो राम जी का हाथ राजा के हाथ के ऊपर रख दिया, राजा के सिर के ऊपर रख दिया। राम जी ऑब्वियसली भगवान है, आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनका हाथ किसके सर पर है, राजा के सिर पर। अब जिस पर हाथ रख दिया है उसका वध कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो राम जी ने कहा हनुमान ये तुमने क्या करा दिया, अब मैं गुरुवर को क्या जवाब दूंगा। इतने में विश्वामित्र जी आए, उन्होंने कहा राजन इसने मेरा तिरस्कार किया था। गुरु का काम कभी भी पनिश करना नहीं होता, लेसन सिखाना होता है। और ये हम सब गुरुओं के लिए लास्ट लेसन कि पनिशमेंट से इंसान सुधरते नहीं हैं। पनिशमेंट का जो लॉजिक मोटिव जो होना चाहिए वो बच्चे का लेसन सीखना होना चाहिए। तो पनिशमेंट बच्चों को वो दी जाए जिससे वो अपनी गलती को समझे और उसको रिपीट ना करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा मुझे पता था कि मेरे ऐसा करने से भले ही आप हाँ कर देंगे लेकिन ये हो नहीं पाएगा, और राम मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूँ। राजा ने उसी टाइम विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लिए, माफी मांगी। तो हनुमान जी ने कहा तब नमस्ते नहीं की, अब कर लो। तो उन्होंने चरण पकड़े, नमस्ते की और ये बताया कि मैं बहुत शर्मिंदा। लास्ट क्वेश्चन विश्वामित्र जी का कि ये दुर्बुद्धि तुम्हें किसने दी कि विश्वामित्र को नमस्ते नहीं करें। तो उन्होंने कहा जी दुर्बुद्धि जो है वो सत्संग से मिली। किसका सत्संग? सत्संग मतलब अच्छी संगत, गुड कंपनी। तो इतने में नारद मुनि खुद ही आ गए। तो बोले विश्वामित्र जी वो सत्संगी मेरी है, मैंने ही इनको बोला था। तो
तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको क्या सूझा था ये सब इतना प्रपंच रचने के लिए, कि इतना बड़ा एपिसोड खड़ा कर दिया आपने। तो नारद मुनि ने कहा, मुझे किसी ने कहा था कि कैसे प्रूव करोगे कि राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। तो मुझे लगा कि चलो शायद ये करके दुनिया को पता चलेगा कि अगर राम जी इस दुनिया में नहीं भी हैं, उनका नाम जो है वो ही इस दुनिया में उनसे भी बड़ा है। राम जी के नाम का मतलब लिटरली बैठना राम राम बोलना नहीं है। राम जी के नाम का मतलब है कि जो संस्कार श्री राम ने हमें सिखाए अपने जीवन से, हम उस जीवन से उनके संस्कार सीखें, अच्छे इंसान बने। लेट अस बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। दैट इज व्हाट रामायण टीचेस अस एंड दैट इज व्हाट लाइफ स्टोरी ऑफ हनुमान टीचेस अस। So it's very important. I narrated this story in front of you because you have lot many learning from Hanuman ji's life. राम जी की लाइफ से ज़्यादा हनुमान जी की लाइफ से सीखने को इसलिए है बिकॉज वो फील्ड में उतरे। राम जी वो थे जो उनको ब्लेसिंग से सेव कर रहे थे, हनुमान जी वो थे जो एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे थे और जो एक्चुअल अपने एक्शंस को रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आप सबको अपनी लाइफ में बहुत सारी बैटल्स लड़नी होती हैं। बैटल्स लिटरली डजंट मीन बैटल, इट्स नॉट वॉर फील्ड, इट्स योर लाइफ। सो व्हेनेवर यू आर फाइटिंग बैटल्स ऑफ योर लाइफ, ट्राई टू कीप ऑल दीज आइडियल्स इन योर माइंड सो दैट एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिटवीन यू, योर पेरेंट्स एंड गॉड। The rest of the people, they have nothing to do with your life. They just come, play their role and go. Ultimately, you are going to be responsible for whatever you do in your life. तो अच्छी बात सुनिए, अच्छे से सुनिए, डिटेल्स में जाइए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, और कभी भी इस बात को दिमाग में मत लाइए कि रिवेंज लेने से या किसी को मार देने से कभी भी आपका रिवेंज पूरा नहीं होता। रिवेंज पूरा तब होता है जब आप सामने वाले को ये समझने पे मजबूर करें कि उसने गलती की है और उस गलती को वो सुधारे, सो दैट दिस प्लेस बिकम्स ए बेटर प्लेस टू लिव इन हार्मनी। दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम लाइफ ऑफ हनुमान जी। So today's assembly all in all was truly amazing. This story that I have narrated, I am going to bring one mega event on this, and I would like few of you to play it at some level. So thank you so much everyone for listening patiently, and I hope you will learn something out of it. Thank you. Sharing your thoughts and blessing with us today. Thank you everyone for being the part of this celebration. जय श्री राम, जय बजरंगबली, और बैसाखी दी आपको लख लख बधाइयाँ। Here to stage, Nishi of 5th class, Avisha of 5th class,